School, that is award ceremony of World Environment Day. Put your hands together and welcome D. Narayan Rao. I welcome you, sir. In Ideal Institution, last 15 days, we had a fabulous days. There are various activities we have conducted for that award ceremony program. We are invited the most famous honorable member of Legislative Assembly of Baswa Kalyan, Shriman D. Narayan Rao sir. We welcome you sir from the bottom of this institution and wholeheartedly we thankful sir. Thank you sir. And also, and as saying, I request to our President sir, founder chairman of this institution, Mr. Mujahid Pasha Qureshi sir, please felicitate our most popular MLA of Baswa Kalyan. Please sir. To be a part of Ideal Group of Institution. As I know, Ideal Group of Institution managed by Al Furqan Education Trust, AFET, established in 2001 with a vision to impart value-based quality education to students of all sections of society in Baswa Kalyan. Ideal Campus has originally grown from a handful of learners, now reached to 1,200 students under its ages from pre-primary to graduation. This trust is founded and managed by Mr. Mujahid Pasha Qureshi, a founder and president. AEFT comprises Ideal Global School, CBSE, affiliated to New Delhi, Ideal Public School, English Medium, State Board, Ideal Pre-University College, Science and Commerce, Ideal Degree College of Science, a combination of PCM and CBZ, affiliated to Gulbarga University. Our visions: Ideal School aims to develop well-adjusted individuals who strive to achieve their full potential in a dynamic, caring and supportive environment. We aim to meet the challenge of specific educational goals for students as well as developing resilient, independent and socially adapt young children, a sound academics, self-discipline and self-worth, respect for others, cooperative learning and living skill. Our dedicated staff takes a very real interest in all children and are committed to each child's future success by providing challenging programs that promote individual growth and achievement, leadership and cooperation with others. Students are encouraged to have significant input into and responsibility for their learning. Our staff plan using learning style
group work, communication, and a wide range of thinking skill to encourage deep understanding and knowledge. Every student, parent, and teacher contributes toward students' individual learning plans, with student achievement being goal focused. Our belief in providing your child with a broad and practical learning experience has resulted in an engaging, comprehensive curriculum, incorporating strong emphasis on numeracy and literacy, thinking skill, a sustainable environment program, multimedia and computer skill development, access to visiting library, art services, active physical education and inter-school sportsman's program, languages other than English, exposure across all area of the art. During COVID-19 pandemic, we never stopped imparting education. Regularly online classes with evaluation have been engaged. This wonderful event, Environmental Day, online speech and drawing competition, which involve parent, student and teacher, has designed by our president and his children, Mr. Mustahid and Mr. Muqtadir. From 15th of June 2020, we are conducting online classes from class 8 to 10 regularly. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಾಗರಾಜರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕುರೇಶಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ದಾವೂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕುರೇಶಿ ಸರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗಿಡಗಳು ಯಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಡೇ ದಿವಸ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬಾಳಿತು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆರಳಿಂದ ಏನು ಬೆಳೆನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳಿದ್ದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾರ. ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬೇಕಾದ ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೀಜಾನು ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪೂರಾ ವಾತಾವರಣನೇ ನಾವು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನೋಡಿಯುವಾಗ ಸುಮಾರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 829 mm ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 80% ಮಳೆ ಬಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 40 mm ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 46 mm ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 116% ಮಳೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾನವ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು.
ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 to 15% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಳಿತಾ ಇದಾವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 90% ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡೋದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Thank you so much, sir. Congratulate to Ideal Global School and the management for this event and whatever they are going to do for the students. This is unique. What do I think? At the level of Basavakaran Taluka, whatever the activities are arranged for the students' personality development, those are different and those are unique. So this is the chance the students can get the opportunity to think in different level. And in this way, in practical way, they are going to teach the students importance of environment. So I'm very glad that my kids are studying here and they are doing different things. So I'm very thankful for giving this opportunity. Thank you to all. Respected guests on the dais, parents, students, good evening to all. As you all know, that this year 2020, we are seeing various memes on the internet, Facebook, that 2020 is having various environmental issues. It started with the Australian bushfires. There was a big forest area was burned in forest. Then it went for COVID-19. Then it is not enough. After that, there came the Nisarga cyclone. Then locust attack. Likewise, this year we are seeing various types of environmental problems, natural disaster. So why these are happening? If we go in detail, this is all because of climate change. Climate change is a very big problem which is faced by not only by India, it is faced by the whole world. If we are not controlling the situation of climate change, so what will happen? In the coming years, we will not survive, the earth will not survive. Various environmentalists are working hard, protesting, and they are working for saving this environment. Like a young girl working for this climate change, and she was sitting outside the parliament for almost 1 year to convince the government to reduce the use of carbon dioxide and other global gases. So what I want to tell you is that we all are responsible for saving and conserving this environment. Not only the representatives like MLA sir or Forest Department or CMC, we all are responsible for conserving this environment. So we should adopt a life, environmental friendly life. We should adopt the different type of strategies like reusing the products which can be reused, recycling the products which can be recycled, and reducing the use of electricity, water. These all are the things which we should maintain. And apart from that, planting a tree and caring, planting and important one is caring. So likewise, we can conserve this environment. So another thing, this competition, YouTube competition, which is run by Ideal Global School, I appreciate the Ideal Global School management. On this lockdown period, the students were roaming here and there and they were not engaged in studies. So they thought of this innovative idea to conduct this program. There was Environment Day on June 5. So I congratulate the management of Ideal Global School for conducting this competition. Respected Honorable MLA Basavakaran Shri B. Narayan Rao ji,
and Veer Shetty ji, Mohammad Shafi Sheikh Sahab, newly appointed Principal of Ideal Global School, Brother Dawood Ahmed, Ghulam Sahab, वीरेंद्र साहब, प्रकाश साहब, अब्दुल गफ्फार साहब। इसके अलावा आज हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर होने वाले पेरेंट्स, मीडिया पर्सन्स और मेरे साथी, आप तमाम को मैं दिल की गहराई के साथ सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, आदाब अस्सलाम और नमस्ते। जानते हैं कि हम इस वक्त, हमारा मुल्क पूरी तरह से एक ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। हमारा मुल्क ही नहीं, पूरा दुनिया, पूरा जगत इस वक्त एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, और वो है कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज, जिसके जरिए से इस बीमारी ने हजारों लाखों लोगों की जान ले रखी है। इसका खतरा बहुत ही गंभीर बना हुआ है, लेकिन जीना तो इसी धरती पर है। जीने के लिए आदमी अपने साधन को, अपनी नॉलेज को, अपने फहम को, अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए जीने के तमाम कोशिशें करता है, और नुकसान से, बीमारी से, बुराई से बचने के लिए जितनी भी वो कोशिशें, जितनी भी तदाबीर होती हैं वो करता है, और करना भी चाहिए। जिस तरह से हम अपने जीने के लिए घर बनाते हैं, दवा खाने के लिए हम हॉस्पिटल को विजिट करते हैं ताकि हम हॉस्पिटल से बीमारी को, पूरी तरह से बीमारी से लड़ने के लिए हम काम करें, तो इसलिए दवाखाना का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब करने का मकसद यही है कि इंसान को जीना है। लिव एंड लेट लिव, जियो ही नहीं बल्कि दूसरों को जीने भी दो। आज का एनवायरमेंट डे का जो प्रोग्राम हमने जो रखा, उसका उद्देश्य यही है कि ये ब्यूटीफुल प्लैनेट, जो दुनिया में एक ही वाहिद प्लैनेट है जिसमें इंसानी जिंदगी बसर होती है, ये आज खराब होता चला जा रहा है। हर दिन, हर रोज एक नई बीमारियों से वो जूझ रहा है। ऐसे में हमें चाहिए कि इसको नुकसान देने से बचाया जाए, नुकसान होने से बचाया जाए। मैंने आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिला दूं कि हर एक आदमी इससे जानता है कि किस वजह से ये प्लैनेट खराब हो रहा है। तो एक अच्छा सा कोटेशन कुरान ने दिया, वो यही है कि ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदी अन्नास। ने अर्थ पर और वाटर में, ओशन में जो कुछ भी बिगाड़ है, जो कुछ भी खराबी है, जो कुछ भी इसका वातावरण का, इन्वायरमेंट का इम्बैलेंस हुआ है, या इसके अंदर कोई भी खराबी पैदा हुई, इंसानों की अपने हाथों की कमाई है। पूरी तरह से क्लियर किया ईश्वर ने, अल्लाह ने तो बहुत ही ब्यूटीफुल हर चीज में इतने बहुत ही सिस्टमेटिक अंदाज में उसको रखा, लेकिन इंसानों ने उसको जीने के लायक नहीं बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि ओशन पर, सी शोर पर, जितने बीचेस पर जितनी गंदगियां दिखती थी, कभी एनिमल्स, कभी प्लैनेट, कभी समंदर के कछुए, मछलियां और दूसरे जो जानवर हैं पर वो कभी बाहर नहीं आते, लेकिन आज वो बाहर आए हैं। और जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, तो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो इसमें आपने देखा होगा कि कितने ही लोग इस वक्त घरों में जब थे, तो परिंदे अपनी चहचहाट से, चूड़ियां अपनी चहचहाट से, जानवर अपने घोंसलों से बाहर निकलकर सुकून की सांस ले रहे। और फिर आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, गाड़ियों का, व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो जाने के नतीजे में इस फिजा में भी आलूगी कम हुई, और बहुत से ज्यादा जो गैसेस से इंसान सुरक्षित रहा। आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह आप देखते हैं तो वहां बहुत ही बैलेंस और बहुत ही पीस और बहुत ही सुरक्षा है। आसमान से जो सूरज की शुआ जमीन पर आती है,
वो शुआ को रोकने के लिए उस गैलेक्सी में एक लेयर है, ओजान लेयर, जो सुराख पड़ रहे हैं, उसके अंदर होल पड़ रहे हैं और जहरीली गैसेस को जमीन पर आने वो नहीं देते। और वो सुराख सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं कि आज हमारी गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, फैक्ट्रियों का जो धुआं है और हमारी अपने कारखानों की जो गंदगी है, ये सब उसको होल डाल रहे हैं, जिसके नतीजे में वो गर्मी और बहुत सी स्किन के डिजीज का बास बन रही है। कई लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है, कई लोगों को स्किन के नए नए डिजीज हो रहे हैं। इसकी वाहिद वजह ये है कि वो ओजान लेयर में होल पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में वो ओजान लेयर फीलिंग हो रही थी। जुनी इसको नासा ने इसको नोट किया कि ये जो ओजान लेयर है उसके होल हील हो रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहे थे कि पोल्यूशन रुक गया था। हाँ, दूसरा जो मामला है कि आज जो फैक्ट्रीज का डिसमैनेजमेंट है, फैक्ट्रीज के अलावा माइनिंग के जरिए से हमने लाखों टन हमने माइन जमीन से निकाल रहे हैं, लेकिन उसका दोबारा उसको फीलिंग करने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो हमें चाहिए कि ये गवर्नमेंट खास करके इस पर केयर करे कि जो कुछ भी माइनिंग्स निकाले जा रहे हैं, चाहे बेलारूस में इतना टन्स ऑफ हमने आयरन और जमीन से निकाले, लेकिन जू का तू उसको छोड़ दिया। हमारे यहाँ से इस एरिया से ये रेड स्टोन निकलता है और इस रेड स्टोन को जमीन से निकाल रहे हैं, वही से गड्ढे छोड़ दे रहे हैं। तो जमीन से जो कुछ माइनिंग्स, जो कुछ भी मिनरल्स निकाल रहे हैं, उसको उसका दोबारा सोल्यूशन भी देना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी तरफ हमें तवज्जो की जरूरत है। एक आखिरी बात मैं कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वो बात ये कि अल्लाह ताला ने वल्लज़िया फजल मरा, वो कहता है कि हमने दरख्त उगाए, बड़े बड़े दरख्त उगाए और बहुत सी चीजें, सारी चीजें उसने तकलीफ किया। फिर उसने वो ही कहता है फजालहु तस्सम व अखवा, यानी हम जब ये सूख जाते हैं, जब ये ड्राई हो जाते हैं, जब ये तो उसको सड़ा गला देते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। कितनी जबरदस्त बात उसने कही है। अगर ये दरख्त अगर डिकम्पोज नहीं होते तो समझ लीजिए कितना बड़ा इश्यू हमारे पास रह जाता। कितने हजारों लाखों दरख्त जो गल जल जाते हैं, लेकिन जमीन पर गिरते, अगर वो डिकम्पोज नहीं होते तो इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाता। तो मैं इन बातों के साथ जो बात अर्ज करता हूँ वो ये, दोस्तों साथियों, ये ब्यूटीफुल वर्ड ये हमारे लिए ईश्वर ने बहुत ही कल्पना के साथ बनाई है। इसके अंदर हर एक चीज बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता को, इसकी पवित्रता को हम खराब होने ना दें। ये मेरा और आपका, तमाम लोगों का, जगत में बसने वाले तमाम इंसानों का एक कर्तव्य है कि वो इसकी वो साफ सुथरा रखे और इसको सुरक्षित रखे, ताकि वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को हम साफ एक इन्वायरमेंट दे सकें। इसी जतन के साथ आइडियल ने ये ऑनलाइन जो कंपटीशन रखा था, इसमें से बहुत ही इंकरेज करने वाली बातें हैं कि बच्चों ने पूरी तरह से, तमाम बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनके परफॉर्मेंस को और मजीद आगे बढ़ाए। और जो टीचर्स और जो लोग भी हमें सपोर्ट किए, हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट किए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। कैसे में हमारे इस माहौल को, बच्चों को स्ट्रेस से निकाले। घरों में बैठे बच्चे बोर हो रहे थे, बहुत सी चीजों में वो क्या करना सोच रहे थे, ऐसे में आइडियल ने उनको एक एक्टिविटी दी ताकि वो एक अपने अच्छे परफॉर्मेंस के जरिए से एक समाज को कल्याण करने का, बस कल्याण जो कल्याण करने का, कल्याण ही नाम है इसका, इस कल्याण को पूरे कर्नाटक और पूरे जगत में हम रोशन करें। इसी विशाल ख्वाहिश के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। थैंक यू वेरी मच। Let's nurture the situation. Sometimes we win and sometimes we lose. It doesn't matter that we lost. It matters what we learn. So now it is the most awaited moment for all of us, that is distribution of prize. For that I request Mr. Majid sir to distribute it. I request you. आबशारों का चलना इंसान को बहुत पसंद आता है, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिशात के तय अपनी 63 comments from the audience. Cheer up his happiness by putting your hands together for honoring the child by presenting the trophy. Stop in effort even the pandemic situation. The
struggling even for a single competition, they don't want to miss an opportunity. Both students who have secured the third position, Mariam and Halima. So the first position from the primary wing goes to none other than Mudape. Big round of applause for him. So honor the child by presenting the medal as well as the trophy. And he has secured instinct of the child. Congratulations, Danish. Well, I would like to invite the consolation prize winners, Altaf from Knowledge Park School and Ashutosh Patil. Both of you, please come upon the dais. This is a consolation prize for their effort, for their presentation, for their interest in competition. And if the parents are here, they can also get the certificate. I request the parents. But the first position, which is secured in drawing competition, the child is not from Baswakalan. The child is from Visakhapatnam. Soon we are going to present and send their certificate as well as the present to Visakhapatnam. The first position is secured by Anusha, the child from Kendriya Vidyalaya. Big round of applause for the child. Parent of the child. And the last, distribute the sapling. सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी सवेरा होता है। पड़े उनके अध्यक्ष आदरणीय मिस्टर उदय पाशा परिषद साहब, बहुत सारे बेटे, सारे गेस्ट और जो ऑनलाइन इस पे एनवायरमेंट इस पर जो पार्टिसिपेट करके जो विनर एंड नंबर जो भी प्राइज लिए वो सारे प्यारे बच्चे और यहाँ पर सारे दोस्तों, इंडिया के सारे फ्रेंड्स, मैं पहले उदय पाशा परिषद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा कोरोना मोमेंट में सब लोग चुपचाप घर में बैठे बोलते हम समझे, अगर आप बैठे बैठे सब लोगों को काम लगा और काम लगाए तो खाली बसों कल्याण लोगों को काम नहीं लगे, सारे विशाखापट्टनम तक वो लोग पार्टिसिपेट किए और ग्लोबल और इससे जो बच्चों का इल्म उन्होंने कितना हासिल किया है, उनके पास कितना स्किल है, कितना नॉलेज है, उसका टेस्ट करने के लिए आपने जो मौका दिया आपको और एक बार सारे लोग उदय पाशा परिषद साहब के अध्यक्ष और उनके सारे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक जोरदार ताली बजाता हूँ। ये इंस्टीट्यूशन अगर 50 साल पहले पैदा होता, स्टार्ट होता, आज हमारी विश्व कल्याण की स्थिति ऐसी नहीं रहती। सिर्फ 20 साल के अंदर ये जो हालात बदले और पहला सीबीएसई इंस्टीट्यूशन आप लाए और हमारे बच्चों को अच्छा तालीम का मालिक बनने का जो मौका दिए। विश्व कल्याण तो ओनली ट्रांसपोर्ट का नाम आता है, एजुकेशन का नाम नहीं आता है। आगे आने वाले दिन में ये इंस्टीट्यूशन और तरक्की करे और इस इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे आए, जो पढ़े हैं, तो आगे बहुत बड़े बड़े मंजिल तक भी पहुंचे हैं। मैं उदय पाशा परिषद साहब को आज जो ये परिसर एनवायरमेंट डे बना रहे हैं,
इन्वायरमेंट जो खुदा जो बनाया इस दुनिया को, जो सजाया, सबको देने के लिए उनको खड़ा कर दिया साहब, सिर्फ इंसान को लेने के लिए रखा। 50% सारे एनवायरमेंट देने वाले हैं, इंसान एक ही आदमी है लेने वाला है, और उसका बददिमाग हो तो खराब करना है। तुमको कभी पूछा क्या साहब, तेरे को कुछ तो करो, तेरे को फीस कम करो, फीस ज्यादा करो, तेरे को प्राइस दो, मैं इतना तुमको इन्वेस्टमेंट करवा देता है, आपको ऑक्सीजन देना बोल के कभी 1 रुपया नहीं पूछा। मुफ्त में सब कुछ देना साहब, पानी मुफ्त में देना, मुफ्त में झाड़, मुफ्त में हवा पानी और ये एनवायरमेंट नहीं रहते तो हम कैसे जी सकते हैं। जाते जाते बच्चे चुप नहीं जाते, झाड़ को तोड़ के जाते, बस में बैठे समय से वो सीट को फाड़ देते। मारे तो मारे झाड़ को, फल लेने के लिए मारा, अगर ऐसा तो फल भी तोड़ देते। तो हमसे कम इंसान उस तरफ ध्यान नहीं देते, बस दुनिया को क्या होना वो सारी चीज देते, ध्यान भी देते, तोड़ भी देते, खत्म भी करते। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई भरोसा नहीं, ये डिपार्टमेंट आने के बाद फॉरेस्ट नहीं बढ़ा सकता, फॉरेस्ट खड़ गए। जब डिपार्टमेंट नहीं था, सरकार नहीं था, कोई नहीं था, जंगल ही जंगल था, पानी पानी था, हवा था। हमारे नेता लोग, हमारे मंत्री लोग, हमारे डिपार्टमेंट के लोग, बड़े IAS IPS सारे लोग मिलकर जितनी ताकत है उतना उसको कम करने का कोशिश करी। तो इसलिए मैं हर आदमी अगर एक एक झाड़ लगाया, ज्यादा नहीं, एक झाड़ लगाना, उसको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करके अगर बड़ा करे, ये दुनिया दोबारा जन्नत होती है। आज मैं कोरोना जो आया साहब, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, ये सही वक्त पे लाया सर। अगर कोरोना नहीं आता था इतना जल्दी पानी जून में नहीं आता था। चट्टी राठौर साहब 46% जो पानी आया जून में, लास्ट टाइम से भी 6% जो ज्यादा आया, ये कोरोना का मेहरबानी है। एक एक्सीडेंट नहीं हुआ साहब पूरे हिंदुस्तान में, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और पानी गैर जरूरी खर्चा नहीं हुआ। अभी मैं तालुके में हर जगह बोरवेल मार लेता हूँ, SC ST OBC हर बोरवेल को 3 इंच 4 इंच 5 इंच पानी लग रहा। ये तुम्हारे वजह से, हमारे वजह से नहीं, कोरोना की वजह से। ये एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन में हॉस्पिटल को 3 महीने में पोस्टमार्टम हमको नहीं किया, पोस्टमार्टम हमने काम ही नहीं है। तो इसलिए बोलने का मतलब है ये कोरोना नहीं आना, ये दिन नहीं मानते। अगर कोरोना आने तक आप लोग इंतजार करें, आपका दिमाग को सीधा करने के लिए वो आना पड़ा। खुदा के सामने मैं दुनिया चला रहा बोल रहे हैं, खुदा एक बार छोड़ दी तो सारी दुनिया बंदर से छक्का उधर से इधर इधर से उधर आते। अमेरिका का प्रेसिडेंट गिड़गिड़ा रहा साहब, मैं दुनिया को चलाने वाला मैं छू, दुनिया को खरीदी करने वाला मैं, बोलने वाला सही है, अब मैं नहीं पूछू बोलना चाहता। इसलिए एनवायरमेंट डे के दिन हम सब लोग जमा हो गए, जमा होकर उदय प्रताप कुरैशी साहब एजुकेशन के साथ, इल्म के साथ एनवायरमेंट के बारे में सभी को आज जो एजुकेट कर दिए, अलर्ट कर दिए। एक घंटी बजाए वो एक घंटी का आवाज सुनकर घर को जाने का, सोने का नहीं है। एक झाड़ लेके जाना, झाड़ लेना तो झाड़ लेके जाना, उसको खरीदी करके 10,000 खरीदी करके 200 झाड़ को साफ दे रहे, वो दे रहे उसका। आज मैं मठारे में 600 प्लांट आज मैं प्लान करके आया सर, 600 और जनरल ज्यादा है। इस साल 3 लाख से ज्यादा सुकरान असेंबली सेगमेंट में, क्योंकि बरसात अच्छी होने वाली है, झाड़ अगर लगाए 3 लाख, एक 3-4 साल अगर हम कोशिश करके एक 10 लाख प्लांट लगाए तो बरसात अच्छी होती है, किसानों की हालत अच्छी होती है, पीने का पानी का इंतजाम होता। मैं दावे के साथ कहता हूँ साहब, हम लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो
क्या होता मैं विश्व कल्याण का रिजल्ट बताऊँ सर। हम 2 साल से महात्मा गांधी रोजगार योजना में 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे डेली सर। 10,000 से ज्यादा महात्मा गांधी रोजगार योजना में ज्यादा पानी ठहरने के लिए और तालाब को एक मट्टी निकाल के पानी ठहरने के लिए जो इंतजाम करे साहब, ये 2 साल के अंदर इस साल टैंकर लगा के कोई गाँव में पानी का दिक्कत नहीं आया और हम नहीं लगाए साहब। हालांकि टैंकर से सप्लाई हुआ, अमरावत में हुआ, भूमनाथ में हुआ, बीदर में हुआ, हर जगह हुआ। ये तालुके की भाषा अगर इसी ऐसा अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तभी 2-3 साल में हमारा तालुके में कंस्टिट्यूंसी में पीने का पानी को प्रॉब्लम कभी नहीं होता। हमारा बरसात का पानी या जमीन के अंदर रहना चाहिए या तो तालाब के अंदर रहना चाहिए। बह के नदी और समुद्र को अगर हम भेजे फिर बाद में पानी के लिए बहुत मांगना पड़ता। इसलिए मेरा इरादा है इस साल 25 नए तालाब मंजूर हो गए साहब, 25 नए तालाब मंजूर हो गए। वो कंप्लीट अगर 2 साल के अंदर हम करें तो बरसात का पानी रोक सकते। और महात्मा गांधी रोजगार योजना में हमारे ज्ञानेंद्र गंगवार साहब, हमारे युवा मंडल साहब, तालुका पंचायत के अध्यक्ष यशोदा वेंकट ठाकुर साहब कड़ी मेहनत करके इस साल और ज्यादा काफी मेहनत किए सर। ऐसा अगर 2-3 साल अगर 3 लाख प्लांटेशन बढ़ा दिए तालुके में तो हर गांव गली में बढ़ा दिए तो पानी मौसम भी बदल रहा, हमारे हालात भी बदल जाते सर। इसलिए मैं गुजरात आशा फरीसी साहब को और एक बार आप सब लोगों के तरफ से तालीम के मालिक बनाने के साथ साथ इस नेचर को, इस निसर्ग को, खुदा जो हमको फ्री में बना के दिया उसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़ा अगर ध्यान दिए, थोड़ा भी अगर मेंटेन करें तो ये जन्नत के बराबर होता सर। इसलिए मैं हमको आज इधर बुला के हमको गेस्ट बना के और प्यारे बच्चों को उनको वो जो काबिल लोग बच्चे हैं उनको हम प्राइज देने के लिए जो मौका दिए, मैं इस मैनेजमेंट का और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ जो है इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे जो मालूम है उसके ताल्लुक से ये इंस्टीट्यूशन उनके तालीम के मालिक, इल्म के मालिक नहीं बल्कि ये यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे, सारे लोगों को अच्छा इंसान बनाने का कोशिश भी, इंसानियत के रास्ते पर चलने का भी यहाँ पर तालीम दिया था। और सारे बच्चे हमारे जितने भी लोग हैं, मैं दुआ करता हूँ आप सब सबर के मालिक बने और इल्म के मालिक बने और सारी दुनिया को चलाने की ताकत आपको मिले। और मैं नए साहब से, धारवाड़ से आए तो साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ जब धारवाड़ से आप आए तो इसको सेकंड धारवाड़ बनाने का कोशिश करो। क्या पूरे बच्चे तालीम के मालिक बनना, यहाँ पर अपन अगर को कोई काम करने के लिए नहीं मिलना, लारी चलाने के लिए विजयवाड़ा राजमंड्री गए, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, बड़ा बोल के खबर हमको नहीं मिला सकती। यहाँ के लोग, हमारे लोग बहुत मेहनत के लोग, कम से कम पुरानी पीढ़ी तो उसमें चले गई, आने वाली पीढ़ी सब लोग इल्म के मालिक बनना, ये मेरी ख्वाहिश है। ये बच्चों को मैं पुजारी पाशा साहब का बारे में मुझे उतना मालूम होता, ये पूरा उनका CBSE का रिजल्ट आया और 10 के 10 नंबर लिए तो मीडिया के पास, मेरे को मीडिया में पढ़ते ही उनका नंबर मेरे पास नहीं था। मैं किसी पुलिस ऑफिसर से उनका फोन नंबर कनेक्ट किया और सीधा उनको फोन पर बात किया, आपको मुबारक साहब, हमको बहुत खुश हो गया न्यूज़पेपर पढ़ के, आपका स्कूल का रिजल्ट, आपके बच्चों का रिजल्ट हमारा बसवा कल्याण का इज्जत बढ़ा दिया, आप हमारे इस शहर की इज्जत बढ़ा दी। उससे मेरी दोस्त वो तो कोई मेरा इससे नहीं था। इसलिए और इंस्टीट्यूशन चलाना कितना मुश्किल है वो भी मैं जानता हूँ। और ये कोरोना आने के बाद कितना पूरा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी दुनिया का आज क्या हालत हो गया आपको, GDP रेट आज 0 में आ गया।
ये आइडियल स्कूल आने के बाद काफी बच्चे और इस पर आ गए सामने, इसलिए मैं और एक बार आइडियल इंस्टीट्यूट के पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को और मैनेजमेंट को प्रयास करके सारे सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करके मुझे दो वाक्य में मौका दिया। धन्यवाद। I am very happy and feel proud you are participating here wholeheartedly. I am very grateful to our honorable MLA Dinaran sir who spent their valuable time, give us the guidance. Thank you very much sir. And the distinguished guests sat on the dais. I am very thankful all of you, our principal sir, the most real ideal personality, ambitious, dedicated, enthusiastic, none other than our most respected President sir, Mr. Mujahid Taja Qureshi sir. Thank you sir for giving this opportunity to us. Thank you sir. The next media person and the parents and all who are present here, I am very thankful for all of you who cooperate us and the participant who didn't get the prize. We are sending the digital certificate to them. And the next thing I am telling to the parents, those who are taking the sapling, please take care of the plants because before it's too late, we have to do something because we have only one planet. So we have to save our planet. Our responsibility is there. So we have to take care of that we can save our planet and make it green and clean. So theme of this is biodiversity. हर एक को जीने का हक है। ऐसा सर ने कहा जियो और जीने दो। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे। मैं आखिर में क्रिएटिव टीम मेंबर्स none other than Mushtahid and Mushtahid to make this event. Because of his creativity, this is possible. Thank you Mushtahid and Mushtahid and our vice principal Maji sir, Rathod sir and all teachers who gather here. आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको कामयाब बनाया। Thank you very much. And I request for and all the participants, there is information for all the participants that you are attending. So this is the more सर नजदीक राजू सर प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल सर